hours Bankor given by all Nisi Youth Association Anya. You are aware that we have in the top Nisi Elite Society and we have Nisi's legislature, then the student wing, all Nisi Students Union is also there, and Anya represents the youth wing. And there are all other affiliated organizations also. We had a meeting of Nisi consultative meeting of NES, Nisi legislature, Anya, ANSU, Agri Allied Federation, NACOS, and all others recently. Even in that consultative meeting, fourth consultative meeting, the issues raised by the Anya this time, alleging wild allegation on chief ministers in Pema Khandu, has been disowned by us, including NES, and there is no iota of truth behind the allegation. The Nisi legislature is very loud and clear in its view, intent that we are with the government led by Sri Pema Khandu. Any allegation leveled by Anya is baseless and is not related to the greater interests of Nisi community. Therefore, Nisi legislature have decided to disown the issues raised by Anya in totality. And 14 of the MLAs have given a signature supporting the government and also requested the Anya to withdraw the Bankor, and our resolution has been given, the copy of resolution has been given to Nisi Elite Society yesterday. Anya is baseless and is not related to the greater interests of Nisi community. Therefore, Nisi legislature have decided to disown the issues raised by Anya in totality. And 14 of the MLAs have given a signature supporting the government and also requested the Anya to withdraw the Bankor, and our resolution has been given, the copy of resolution has been given to Nisi Elite Society yesterday. The copy of signed copies are here with us also. We had the four resolution. For your information, I'll read it out. The members univocally denounce the move of all Nisi Youth Association for organizing undemocratic Bankor against the government to fulfill their illogical and illegitimate grievances, which is not related to the greater interests of Nisi community. Number two, the Nisi legislature desires that APEC organization of the community, the Nisi Elite Society, effect a proactive role to prevail upon all Nisi Youth Association to withdraw the Bankor. The House further urged upon the office of Nisi Elite Society to de-recognize the incumbent Anya team led by Sri Byabang Joram if Para 2 above is not adhered to in line with the resolution adopted in the first consultative meeting of NES, Nisi legislature, Anya, ANSU, etc., wherein it was agreed to channelize grievances through proper channel.
In the event of failure to abide by our request as stated in para 1 to 3, the Nichi legislature shall not be held responsible if the government take stern legal action against the enforcer of illegal and undemocratic band call as per the law of the land. That was the 4-point resolution we adopted yesterday, and the copy has been handed over to NES for further course of action. और हम लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ मैं एक इसी लेजिस्लेचर कोऑर्डिनेटर का हिसाब से मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और कुछ पूछना होगा तो मेंबर्स आर ओपन, आप लोगों को आंसर देंगे। और इसमें इश्यूज जो है इसी से रिलेटेड नहीं है, एंड हम लोग जो एल्डरली रोल कम्युनिटी प्ले कर रहे हैं अरुणाचल में, वी आर फॉर पैन अरुणाचल, वी आर फॉर गुड गवर्नेंस, वी आर फॉर गुड लीडरशिप अंडर दी लीडरशिप ऑफ द पेमा खंडू। इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है और बहुत ही अच्छा ढंग से सरकार चल रहा है। इसको चलने देने के लिए निशी एमएलए का तरफ से 2 इंच का भी डाउट नहीं है, हम आगे खड़ा है। और आया का जितना भी इश्यूज है ना सरकार से रिलेटेड है, ना कम्युनिटी से रिलेटेड, ना स्टेट का इंटरेस्ट में है, तो इस एलिगेशन को हम लोग वाइल्ड और एक बेकार का एक एलिगेशन मानता है। थैंक यू। Any clarifications you looking for? From any members you can. Sir, regarding the allegation leveled by Anya, they are saying that CM himself is doing contract works and all the government works also, so many road projects also is done by CM and his family. So what you will say, because it's a state issue. If someone is doing corruption, whether it's a CM or anyone, they should give some clarification. See, CM is not a contractor. There might be a business entity of his family, and it is not constitutionally debar anybody from doing business by a company formed by the family members or any other relative members. कोई इसमें गलत काम तो नहीं है। Just excuse me, by I think in the afternoon, the government is going to give all the clarification on the allegations level against the Honorable Chief Minister. So in the afternoon, the government is going to have a press conference with you again in the afternoon. So you can get all the clarifications in that press conference. तो कोऑर्डिनेटर साहब, हम लोग ये मान के चलें कि जो हमारा निशी एमएलए है, क्योंकि ऑनरेबल मंत्री जी भी है यहाँ पर, काफ़ी मिनिस्टर साहब लोग भी है, और हमारा निशी जो सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, तो आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आन्या का जो एलिगेशन है, जब हम लोग देखते हैं और उनका एलिगेशन जब हम लोग सुनते हैं, तो वो कोई एमएलए का ऊपर में इंडिविजुअल किसी को एलिगेशन नहीं डाला है। और वो आन्या जो बार बार बोल रहा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम विद द पेमा खांडू ऑल्सो बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनका एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। ऐसा यूनिटी इंटीग्रिटी, वो तो निशी इज ऑलवेज यूनाइटेड फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज सिंस द बिगेस्ट ब्रदर इज देयर। तो यही चीज है, आन्या इज डिमांडिंग ए क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पेमा खांडू, नॉट फ्रॉम द एनी इंडिविजुअल एमएलए, नॉट द हिमसेल्फ। ये है सर। ये मैं एक चीज़ आप लोग बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये आफ्टरनून को आप लोग बता ही देंगे। ऑन 29th of December, government from the chief minister office have extended through in writing inviting all Nishi association for clarification, but they didn't turn up. सर, आपका बारे में हम लोग बात किया था सर। आन्या का प्रेसिडेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था अरुणाचल प्रेस क्लब में। व्यापक जोरम का कहना था कि हम लोगों को इनविटेशन 11 बजे में मिला और 2 बजे का मीटिंग था। नहीं, इसका बात मेंबर्स कहीं भी नहीं था ईटानगर में, हमको कलेक्ट करने के लिए समय नहीं, ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये 11 बजे में लेटर दिया, ठीक है, नो उनका बोलना भी सही है। 2 बजे में हम लोग बुलाया तो उनको मैंने पर्सनली टेलीफोन किया कि अगर आपका एग्जीक्यूटिव चला गया, न्यू ईयर के लिए चला गया, हमको भी बताया, हम फोन किया था। तो मैंने उनको बोला कि 3 जनवरी तक हम लोग फिर बैठेंगे। तो इन लोग कम्युनिकेट करने का बात था, तो अभी नहीं किया। तो अगेन टुडे यस्टरडे जैसे लर्निंग डिप्यूटी कमिश्नर कैपिटल रीजन का उन्होंने फिर इन्विटेशन किया है। नाउ दे मस्ट बी डिस्कसिंग, तो इफ देयर इज एनीथिंग फॉर क्लैरिफिकेशन द गवर्नमेंट इज रेडी, तो वो तो आपको आफ्टरनून को बता ही देंगे। तो एज ऑफ नाउ जो स्टैंड जो निशी लेजिस्लेचर्स का स्टैंड को ऑनरेबल मेंबर हायंग मंपी जी ने आप लोग को एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द
निशी लेजिस्लेचर विद दी निशी इलाइट सोसाइटी एज ए कोऑर्डिनेटर आप लोग को ब्रीफ कर दिए। सर एक चीज तारीफ करने का लायक है, पेमा खांडू सरकार जब से आया तब से बंद कल्चर जो काफ़ी अवॉइड किया गया था, बहुत ये शायद हमको लगता है कि ये भी शायद स्किप ऑफ हो जाएगा, क्या लगता है सर? होम मिनिस्टर साहब यदि आप बोल रहे हैं थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि क्या आप गृह मंत्री भी है सर? क्या चीज़ को? बंद कल्चर का ऊपर में कोई भी नहीं चाहता है कि बंद कल्चर को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इट अफेक्ट हैम्पर्स ऑल द एक्टिविटीज। और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है सर, काफ़ी इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है, प्लस बिहू सेलिब्रेशन है, मकर संक्रांति है, उसके बाद में हमारा अरुणाचल नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का अरुणाचल में चल रहा है। इट इज हिस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग भी नहीं चाहते बंद कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए होम मिनिस्टर साहब को बोलते हैं यदि आप लोग का डिस्कशन फेल होता है इन केस, तो क्या आप लोग आन्या को फिर से आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि बंद को विड्रॉ करने के लिए? नहीं, ये देखिए एक तो चीज़ सबसे आगे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो निशी लेजिस्लेचर ने कल जो मीटिंग हुआ था उसमें ये एक चीज़ पॉइंट को रखा गया था कि फॉर द लास्ट जो 7 लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स, निशी सिर्फ नहीं बल्कि इंटर 60 मेंबर्स ऑफ द हाउस जो है, हम लोग लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग पेंडेमिक में लड़ता रहा, प्रैक्टिकली डेवलपमेंट नहीं हो पाया। शायद देख रहा है 3 मिनिस्टर है, जेडीयू का ऑनरेबल मेंबर है, एनपीपी का ऑनरेबल मेंबर है, तो यहाँ में कोई मंत्री नहीं है, यहाँ में कोई जेडीयू नहीं है, यहाँ में कोई एनपीपी नहीं, यहाँ में कोई बीजेपी नहीं है। वी आर जस्ट निशी लेजिस्लेचर्स। तो निशी लेजिस्लेचर का ओपिनियन को आप लोगों को बताना था, तो इट इज इन ए रिटन फॉर्म एंड दिस विल बी सर्कुलेटेड टू एवरी वन ऑफ यू। तो सरकार का जो ये क्लैरिफिकेशन है, वी विल मीट अगेन इन द आफ्टरनून फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट वी हैव आई हैव तो फायदा लेते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आई हैव रिक्वेस्टेड दी Deputy Commissioner Capital Region to convince them and bring to the government. We will discuss. अगर वो डीसी साहब लेके आते हैं, तालो पुटम साहब लेके आते हैं, हम लोग बात करेंगे. Not the door, not the even window door are all open, and they can come at any point of time to discuss with us for a solution. तो ये बात है. Thank you very much. Thank you. Sir, this was the decision of the 13 Nishi legislature. No, it is already he have already given you the. और गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग को प्रेस में क्लैरिफिकेशन देंगे। देखिए अभी जो इस बार जो आन्या जो बन कॉल किया है, इस बन कॉल को निशी कम्युनिटी से हम लोग जितना जो लेजिस्लेचर के साथ और जितना निशी डिस्ट्रिक्ट है पूरा कम्युनिटी हम लोग कंडेम करता है और बिल्कुल ये गलत है और इलीगल बन कॉल है और इसको बिल्कुल हम लोग लेजिस्लेचर तो सरकार का साथ हम लोग बिल्कुल मजबूत का साथ करा है और पूरा आपके सब मीडिया के माध्यम से जितने भी निशी भाई बहन जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बिल्कुल ये इलीगल में कोई निकलना नहीं है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करना, इस बंद को कोई सपोर्ट नहीं करना। हम लोग बिल्कुल इसमें कोई भी प्रकार का हम लोग कंडेम करते हैं। एनईएस भी साथ नहीं है इसमें, लेजिस्लेचर साथ नहीं, कोई पूरा निशी का 100%, कुछ अन्य कुछ मेंबर्स है, बाकी कोई साथ नहीं है। तो ये हमारा आप लोग का मीडिया का थ्रू हम लोगों को एक खास करके निशी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है यूथ लोग को, और सुनने में आया कि जो डिस्ट्रिक्ट से कुछ डेलीगेशन आ रहा है और बिल्कुल डेलीगेशन नहीं आना और इसमें हम लोग कोई प्रकार का निशी लोग साथ देंगे। थैंक यू। नातुंग साहब बंद कल्चर को कोई साथ नहीं देता, हम लोग भी साथ नहीं देते हैं, तो आप लोग तो इलेक्टेड लीडर है, आप लोग तो जरूर साथ नहीं देंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 100% पब्लिक को, नॉट इवन जो होता है जो वोट मारता है, जो पैदा होता है जो स्टेट में, उस सब का रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, सरकार लोग। लेकिन एक चीज सर सवाल बार बार उठता है, जब बंद को डिक्लेयर करने के बाद एमएलए लोग, खास करके हमारा जो लार्जेस्ट कम्युनिटी का एमएलए लोग एक ही बार में जागरूक हो गया, पहले इसका ऊपर में क्यों डिस्कशन नहीं हुआ? अन्य बार नवंबर से बार अल्टीमेटम का ऊपर अल्टीमेटम दे रहा है सरकार, उसको जैसे गृह मंत्री जी एक बार बुलाए उनको बात करने के लिए, दे डिडंट टर्न अप, इसके बाद में भी सर बहुत तरीका था बात करने का, देखिए इसका तरफ से भी था, जैसे आप भी बता रहे हैं। आपको बता रहा हूँ कि गृह मंत्री जी ने
कल हम लोग मीटिंग में भी डिस्कस किया कि अन्या ने जो जो रिपोर्ट मांगा है, जो जो गवर्नमेंट का सरकार का डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में जो एलिगेशन दिया है उसको सरकार का तरफ से पूरा रेडी करके अन्या को डिस्कस के लिए अन्या को बुलाया, सीएमओ से लिखित में भेजा, गृह मंत्री जी ने टेलीफोन भी किया, हम लोगों ने भी काफ़ी किया, लेकिन वो हम लोग का साथ बात करने को तैयार नहीं है।